Hello, everyone. Welcome back to another episode of Connect Conversations. Hope you all are doing well. Today, we have with us someone who is passionately helping companies in proper implementation of POSH and POXO programs, as well as ensuring secretarial compliances, board governance, and corporate governance. This includes policy designing and implementation, handling related compliances, handling investigations, serving as external member, and conducting training as well as sensitization programs. A community partner with Mentor My Board, a Mumbai-based company for prevention of sexual harassment at workplace. She has also co-authored and presented research paper HR Managers as Ethical Managers at International Conference on HR called Search of an Identity, organized by IBS ICFI Business School, Mumbai in the year 2018. She has also graced Forum Views Women Specific Edition along with 127 prominent women leaders across the globe in April 2023. She has also headed Anti-Sexual Harassment Committee for Wiki in Madhya Pradesh as state president. A very warm welcome to Mrs. Divija Dave, founder director Postshala and founder Divija Dave and Associates. Hello, ma'am. Welcome to Connect Conversations and thank you for allowing us to share your journey on this platform. Hi, Antra. Thank you so much. I am very grateful that you have welcomed me on this platform and given me this opportunity to talk about what I am and what I do. Thank you so much. Pleasure is all ours, ma'am. So, ma'am, you are a qualified CS, company secretary. So, you must have helped various corporates with their board governance, corporate governance, CSR, and ethic practices, whatever that job role entails. So, suddenly, what inspired you, to venture into the area of sexual harassment and establish Poshala? If you can tell us something about your professional journey, which I'm sure must have been very enriching. Actually, this is a very interesting question because मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि एज अ कंपनी सेक्रेटरी आपने ये वाला पाथ कैसे चूज किया. सो मैं एक चीज बताना चाहूंगी दैट एज अ कंपनी सेक्रेटरी आई फील वेरी वेरी प्राउड दैट मैंने एक अलग रास्ता अपने लिए चूज किया है. सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एंड चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज को अपना एक निश बनाया है बिकॉज कई सारे कॉर्पोरेट्स के साथ, कई ऑर्गेनाइजेशंस के साथ बहुत ज्यादा क्लोजली काम करते हुए मैंने काफी चीजें ऑब्जर्व की है. ऑफ कोर्स आई हैव हेल्प्ड देम विद द सेक्रेटरियल कंप्लायंसेस एंड गवर्नेंस एंड अदर थिंग्स व्हाट forms a part of the job role of a company secretary. But moving from compliance to governance is the need of the hour, and that's what I exactly felt when I got into my practice as a company secretary. तब मुझे समझ में आया कि सिर्फ टिक द बॉक्स अप्रोच से काम नहीं चलेगा. देयर हैज टू बी अ मूवमेंट टुवर्ड्स द गवर्नेंस मैकेनिज्म्स टू स्ट्रेंथन योर गवर्नेंस पिलर्स इन द ऑर्गेनाइजेशंस, बिकॉज ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि अब हम इस चीज के ऊपर ध्यान दें जहां पर हम अपने प्रैक्टिसेस को कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं. कंप्लायंस आपका इन प्लेस है, लेकिन आपका गवर्नेंस इन प्लेस है या नहीं ये हमको देखना है. So that was my shift from compliance to governance. Now talking about sexual harassment as a subject, why I chose this because जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे corporates के साथ बहुत closely associate होके मैंने उनके culture को देखा. I saw that एक सेफ्टी सिक्योरिटी वाली बात जो होती है, इट इज नॉट ओनली अबाउट सेफ्टी ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, इट इज प्रैक्टिकली अबाउट ऑल द जेंडर्स एट वर्क प्लेस. सो किस तरह से आप उस डिग्निटी को, उस रिस्पेक्ट को, सेफ्टी को आप देते हैं सामने वाले को, करेक्ट? बिकॉज दिस इज द ड्यूटी ऑफ एवरी एम्प्लॉयर, एवरी पर्सन हु इज एसोसिएटेड विथ योर ऑर्गेनाइजेशन टू हैव दैट पर्टिकुलर रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी एट वर्क प्लेस. तो वो चीजें कहीं ना कहीं मुझे मिसिंग लग रही थी किसी ना किसी पॉइंट पे, और कई सारे ऐसे इंसिडेंसेस भी थे जहां मैंने खुद काफी चीजें फेस की. And I'm not shy or hesitant talking about this particular thing on this big platform, क्योंकि जो सच है वो सच है. कुछ चीजें हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं, बट बहुत सारी चीजें हमारे जहन में होनी चाहिए टू आइडेंटिफाई कि करेक्ट मीनिंग ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट क्या है, आपने सच में क्या चीजें फेस की है. फॉर एग्जाम्पल, हम ये सोचते हैं कि सेक्सुअल हरासमेंट सिर्फ फिजिकल होता है, लेकिन वो कई सारे फॉर्म्स में आपके सामने आ सकता है. जैसे वर्बल हो सकता है, नॉन वर्बल हो सकता है, डिजिटल हो सकता है, आज के टाइम साइकोलॉजिकल हो सकता है, कई सारी चीजें हो सकती है. बट क्योंकि हम इन सब चीजों के बारे में अवेयर नहीं है, हमें नहीं पता कि हमें किस अथॉरिटी के पास जाके अपने अप्रोप्रिएट क्वेरीज को रेज करना चाहिए, हमारी प्रॉब्लम सॉल्वर्स कौन है कॉर्पोरेट्स में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, हम चुप रहना प्रेफर करते हैं. जी. एंड दैट इज वेयर द प्रॉब्लम बिगिंस.
क्योंकि आप इंपॉर्टेंट चीजों पे जब चुप रह जाते हैं तो आगे सारी चीजें उसी तरह से होने लग जाती है जैसा उस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर होता है, right? And that's where my viewpoint on prevention of sexual harassment went very very high, क्योंकि मुझे लगा कि जब मैंने ये चीज फेस की है, मुझे बोलने की जरूरत अगर पड़ रही है, तो शायद हर एम्प्लॉय को, हर स्टेक होल्डर को इसके बारे में बात करना जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कोई इस चीज से जरूर अफेक्ट हो चुका है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनको बताऊं कि सिर्फ ये फिजिकल नहीं है, काफी सारी चीजें इसके साथ जुड़ी हुई है, लोगों को अवेयर करूं दैट दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज डे एंड टाइम, एंड आपको इस चीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो ऐसे करके मैंने अपना निश डिजाइन किया। नाउ टॉकिंग अबाउट पौधशाला एज अ नेम, पौधशाला को नाम देते वक्त भी बहुत सारी चीजें दिमाग में चल रही थी कि हम एक इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं, उसको किस तरह से हम नेम करेंगे कि लोग उसका असली मतलब समझ पाए, एंड दैट्स हाउ पौधशाला वाज कॉइन्ड। पौष का अर्थ है POSH, इज प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, एंड शाला जैसे हम कहते हैं कि कोई भी स्कूल है या कोई भी ऐसी जगह जहां पर आप आकर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं या ट्रेनिंग्स ले सकते हैं, अपने आप को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, राइट, एकेडमिकली and fundamentally on the subject. So that's where Paushala became a word, became a name, and उसको हम लोगों ने एक इनिशिएटिव की जैसे 2020 में स्टार्ट किया, कोविड टाइम्स में, जब हमें पता चला कि कई सारे केसेस ऑफ वर्चुअल सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहे हैं। क्योंकि जब पहले हम वर्क प्लेसेस में जाते थे, फिजिकली जाते थे, देयर वी यूज्ड टू थिंक दैट नो, इट्स ओनली द फिजिकल काइंड ऑफ atmosphere which is creating people to get into the problems of sexual harassment. But no, when we went into the virtual scenario, when the COVID times came, we actually saw rise in complaints, क्योंकि हमें ये पता चलने लग गया कि वर्चुअली डिजिटली भी लोग सेक्सुअली हरास हो रहे हैं, और वो बहुत ज्यादा शॉकिंग था, प्लस बहुत ज्यादा एक ऐसा एस्पेक्ट था जो लोगों को उस वक्त अवेयर करना बहुत जरूरी पड़ गया था। Right. So that's how Paushala was started as an initiative in 2020, and then in 21 it became a company, official corporate company बनी, और ऐसे हम अपना काम आगे बढ़ाते गए। अभी तक हम लोग more than 15,000 प्रोफेशनल्स को मतलब प्रोफेशनल्स में आप गिन लीजिए, सभी स्टूडेंट, टीचर, बच्चे, सभी जो भी हैं, कॉर्पोरेट्स के लोग, ऑर्गेनाइजेशन के लोग, अलग अलग जगह से जो भी आते हैं, उन सबको हम ट्रेन कर चुके हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी कम्युनिटी को बहुत ज्यादा फैलाएं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम हर जगह नहीं पहुंच सकते, बट हमारे बिहाफ पे कई सारे लोग ऐसी जगह पहुंच सकते हैं जो इस अवेयरनेस को आगे लेके जाएंगे। Right. Wonderful, ma'am. Kudos to you and Poshala for doing such a commendable work for the society. We wish you all the best for all your future endeavors. Thank you. So, if we have to talk about ma'am Poshala in detail, अगर हम उसके बारे में बात करें तो मैम आप लोग किस तरह की services हैं जो आप provide करते हैं? And if one wants to enlist your help, if required, how do we approach Paushala kind of services that you'll be able to provide? And also, ma'am, I wanted to know ki is Paushala's work only limited to women victims, or do you also undertake complaints from the other genders as well if they come to you? So Antara, I'll answer your second question first, because यहाँ पे ये चीज क्लियर करना बहुत जरूरी है दैट आप जैसे एक्ट का नाम भी पढ़ते हैं ना, जो पॉश एक्ट 2013 कहा जाता है, तो उसका नाम पूरा जो है दैट इज सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। सो उसमें भी जो पहला शब्द रखा गया है वो प्रिवेंशन है, और आखिर का शब्द जो रखा गया है वो रिड्रेसल है। That is the same ideology, same fundamental that we are working on with. हम लोग भी प्रिवेंशन को ज्यादा फोकस देते हैं, बिकॉज वी वॉन्ट टू हेल्प ऑर्गेनाइजेशंस टू क्रिएट दैट सेफ एंड इनेबलिंग एनवायरमेंट फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग टू वर्क सेफली इन दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। Right. हम चाहते हैं कि complaints ना आए. Of course, whenever there are complaints, obviously there has to be redressal mechanism attached to it. That we very well take care of. But our main focus is on creating awareness about how you can prevent this particular act. जैसे हम बोलते हैं prevention is better than cure. So right. Prevention इस area में भी सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये सभी कुछ mindset का खेल है जी। Right? आप देखते हैं हम सभी ग्रोन अप अडल्ट्स हैं, सबके माइंडसेट एक तरह से नर्चर होके आए हैं, हम कहीं से एक बैकग्राउंड लेके आए हैं, हमारी अपब्रिंगिंग्स अलग अलग है, वी हैव अ डिफरेंट थॉट प्रोसेस। तो हम वो सारी चीजें अपनी पर्सनालिटी में शोकेस करते हैं जब भी हम किसी
कंपनी में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाके अपना काम करते हैं तब। जी। पर एट द सेम टाइम हमारा फोकस ये भी रहता है कि हम बच्चों के साथ इस पर्टिकुलर माइंडसेट को कैसे नर्चर कर सकते हैं। दैट्स व्हाई वी एक्चुअली फोकस ऑन स्कूल्स एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस अ लॉट along with the corporates, along with the other organizations, because वो बच्चों को आप जिस तरह से मोल्ड करेंगे वो उसी तरह के सिटीजन आगे जाके बनेंगे। जी बिल्कुल। राइट तो ये एक पार्ट है कि ये सिर्फ रिड्रेसल या विक्टिम के साथ डील करने वाली बात नहीं है, पर ये प्रिवेंशन के ऊपर ज्यादा फोकस करने वाली बात है। दूसरी बात ये है कि जब भी हम रिड्रेसल की बात करते हैं, जब भी हम किसी कंप्लेंट को लेते हैं, उसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं एज द फॉर्मल कमिटी एंड एवरीथिंग, उसमें इट इज नॉट ओनली द फीमेल विक्टिम्स, आई वुड से इट इज अबाउट एवरीबडी हु हैज बीन अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। So we actually try to promote gender neutrality at workplace. कभी कभी लोग ये मुझसे पूछते हैं कि जैसे एक्ट है वो काफी ज्यादा वुमेन स्पेसिफिक बनाया है, पॉश एक्ट में वुमेन को प्रोटेक्शन मिली है, तो आई ऑलवेज हैव एन आंसर फॉर देम स्टेटिंग कि वुमेन को प्रोटेक्शन जरूर मिली है वहां पे, लेकिन अगर औरतें ज्यादा अवेयर होने के बाद फॉल्स कंप्लेंट्स फाइल करती हैं तो वहां पर दूसरे लोगों को जिनके अगेंस्ट फॉल्स कंप्लेंट फाइल हुई है, जो मेल्स है या कोई भी है, उनके उनके लिए भी एक प्रोटेक्शन बनाया गया है। तो एक ऑब्वियसली वहां पे गैप्स हैं जहां जेंडर न्यूट्रलिटी हमें नजर नहीं आती है, पर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की पॉश पॉलिसी इस तरह से बना सकते हैं जो जेंडर न्यूट्रल हो सकती है, जहां पर आपके स्टेक होल्डर्स फीमेल्स, मेल्स, थर्ड जेंडर सभी हो सकते हैं। तो अगर किसी के साथ भी एक्ट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है ऑर्गेनाइजेशन में, तो अगर वो पॉलिसी आपकी इतनी ज्यादा वाइड है, इतनी ज्यादा एग्जॉस्टिव है, वो सारे जेंडर्स को कवर करेगी, एंड दैट्स वेयर वी वर्क। क्योंकि हमारा पूरा इंपॉर्टेंस जेंडर न्यूट्रलिटी की तरफ जाता है, एंड हम चाहते हैं कि हर जेंडर जो भी एसोसिएटेड है एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उसकी डिग्निटी और उसकी रिस्पेक्ट को हम लोग प्रोटेक्ट करें और उसके ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में इस चीज को इम्बाइब कराने की कोशिश करें, दैट हाउ यू आर सपोज्ड टू डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स। सो दिस इज एन आंसर टू योर सेकंड क्वेश्चन। नाउ टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू हैड आस्क्ड कि हमारे क्या क्या सर्विसेज हैं। सो आई earlier also told you that I stepped I stepped into the governance part. कंप्लायंस से गवर्नेंस की जर्नी मैंने अपनी तय की है। सो यहाँ पर भी मैं सेम चीज कहती हूँ कि ये पॉश पॉक्सो कंप्लायंस नहीं है, पॉश पॉक्सो गवर्नेंस है मेरे लिए। सो मैं मेरे क्लाइंट्स को या मेरे ऑर्गेनाइजेशंस को, जो भी जिनके साथ भी मैं काम करती हूँ, उनको मेरी एक ही बात मैं कहती हूँ, दैट यू नीड टू इम्प्लीमेंट रोबस्ट पॉश प्रोग्राम और पॉक्सो प्रोग्राम इन योर ऑर्गेनाइजेशन। इसका ये मतलब है कि आपको A to Z वो सारी चीजें इन स्पिरिट करनी होगी जो आप पेपर पर कर रहे हैं। मतलब पेपर कंप्लायंसेस तो आप डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि एक अथॉरिटी बैठी है जो आके आपकी रैंडम चेकिंग करेगी, उसके ऊपर पेनल्टी फाइन है अगर आपने नहीं किया तो। लेकिन क्या आप पेपर कंप्लायंसेस के अलावा उसको इन स्पिरिट इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं? डू यू वॉलंटरली फील दैट यस, माय ऑर्गेनाइजेशन शुड बी वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेसेस टू वर्क फॉर ऑल द जेंडर्स एट दिस पर्टिकुलर सराउंडिंग? क्या आपके मन में ये भावना है? सो दैट्स वेयर वी हेल्प ऑर्गेनाइजेशंस टू ब्रिंग दैट पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस इन देम। सो वी ऑलवेज कॉल इट एज रीथिंक पॉश। आपने पॉश को सिर्फ ऑन पेपर अप्लाई किया हुआ है, पर आप उसके बारे में दोबारा सोचिए और आप उसको इन स्पिरिट अप्लाई करने की कोशिश करिए। तो इसमें सबसे पहली चीज आ जाती है आपकी पॉलिसी के बारे में। जो पॉश या पॉक्सो पॉलिसी आपके पास होनी चाहिए एज पर द प्रिस्क्राइब्ड एक्ट्स। आप उस पॉलिसी को डिजाइन करते हैं तो पॉलिसी में आपको क्या क्या चीजें कवर करनी है। अब आप मुझे एक चीज बताइए कि जैसे अगर कोई भी पॉलिसी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की होती है, तो आपको लगता है कि ऑब्वियसली हर ऑर्गेनाइजेशन का थॉट प्रोसेस अलग होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर अलग होता है। तो हमारी पॉलिसी कॉपी पेस्टेड हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। जैसे हम लोग कॉपी करके उसको पेस्ट करके एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं दे सकते हैं। एक माइंडसेट उस ऑर्गेनाइजेशन का अलग है, तो मुझे एक स्पेसिफिक पॉलिसी क्यूरेट करनी पड़ेगी, मुझे लिखना पड़ेगा उस पॉलिसी के अंदर। मुझे अपनी पब्लिक को, अपने एम्प्लॉयज को, ऑडियंसेस को, स्टेक होल्डर्स को बताना पड़ेगा कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन के जो लीडर्स हैं वो इस पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस के साथ आते हैं। एंड दैट्स वेयर मैं सेफ्टी, डिग्निटी, रिस्पेक्ट जैसी चीजों को अपनी पॉलिसी में डिस्क्राइब कर पाती हूँ। राइट सो ये एक स्पेशल चीज है जो आपको स्पेसिफिकली ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स के साथ बात करके, बोर्ड मैनेजमेंट के साथ बात करके डिजाइन करनी होगी। उसके साथ वी ऑल्सो हेल्प इन क्रॉस रेफरेंसिंग दोज पॉलिसीज विद वेरियस अदर इंटरनल डॉक्यूमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस।
Because I come from a background of a company secretary, I understand that एक एक्ट का रेपरकशन दूसरे में होता है, दूसरे का तीसरे में होता है, काफी सारी चीजें इंटरलिंक्ड होती है जी। पर हम क्या करते हैं कि हम एक कंप्लायंस करने के चक्कर में दूसरे को लेट गो कर देते हैं। तो ऐसे नहीं, यू नीड टू अलाइन ऑल ऑफ दोज थिंग्स टुगेदर, align your documents with other documents of the organization। जैसे फॉर एग्जांपल पॉश पॉलिसी का अलाइनमेंट कोड ऑफ कॉन्डक्ट पॉलिसी के साथ करना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको कोड ऑफ कॉन्डक्ट पॉलिसी बताती है हाउ यू आर सपोज टू कंडक्ट योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ अदर्स, एंड पॉश पॉलिसी आपको बताती है कि सेक्सुअल हैरासमेंट जैसी चीजें क्या क्या होती है। उस पॉलिसी से आप अगर लिंक करेंगे तो वहां पे आप रिस्ट्रिक्शंस डाल सकते हैं कि सो एंड सो एक्ट इज नॉट परमिसिबल इन माय ऑर्गेनाइजेशन, ड्रेस कोड इस तरह का परमिसिबल नहीं है। तो अगर ये कुछ चीजें स्पेसिफाइड होंगी, लोगों का माइंडसेट थोड़ा सा स्पेसिफाइड होगा, तो ये दोनों चीजें साथ में काम करने लग जाएंगी। ये छोटा सा एग्जाम्पल है। दूसरा होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंटरनल कमिटी। अब काफी सारे लोग इस मिथ में रहते हैं कि पॉश एक्ट हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं है तो हम इंटरनल कमिटी क्यों बनाए। सो पॉश एक्ट बहुत ही सिंपल है, वो हर ऑर्गेनाइजेशन पे एप्लीकेबल होगा। यहाँ पर सिर्फ ध्यान रखने की बात यह है कि आपको इंटरनल कमिटी तब बनानी है जब आपके पास 10 या 10 से ज्यादा लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, इन एनी कैपेसिटी, एनी फॉर्म, राइट। तो इसके चलते लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें इंटरनल कमिटी की जरूरत है या नहीं है, अगर है तो उसमें कौन ऑन बोर्ड हो सकता है, हु आर द राइट काइंड ऑफ पीपल हु कैन बी अ पार्ट ऑफ इंटरनल कमिटी। सो ये सारी चीजें हम हेल्प करते हैं, क्योंकि इंटरनल कमिटी को काफी सारे पावर्स दिए गए हैं, उन पावर्स का सही यूटिलाइजेशन करना उस इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। सो यू कैन नॉट पुट एनी रॉन्ग पर्सन इन दैट पर्टिकुलर प्लेस हु कैन मिसयूज दोस पावर्स, राइट। सो यू नीड टू equip internal committee and choose right people on board, right? So that is one part that we help with. Yes. Then another part is training and sensitization. Now training and sensitization is also curated as per different audiences you cater to. It is not only one type of training given to all. वो ऐसा नहीं है कि one size fits all, ऐसा नहीं है। हर ऑडियंस के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अलग अलग होते हैं, बोर्ड मैनेजमेंट के लिए अलग होंगे, एम्प्लॉयज के लिए अलग होंगे, इंटरनल कमिटी मेंबर्स के लिए अलग होंगे, एंड आपके लास्ट माइल वर्कर्स जैसे मेड वर्कर्स हैं, पियोन स्टाफ है, गेट कीपर स्टाफ है, वॉचमैन स्टाफ है, इन सब के लिए अलग होगा, क्योंकि उनको एक अलग भाषा समझ में आएगी जी। मैं बोर्ड के साथ जिस लैंग्वेज में बात कर रही हूँ उस लैंग्वेज में मैं किसी और के साथ बात नहीं कर सकती हूँ। सो ये सारी चीजों का ध्यान मुझे बहुत ज्यादा रखना है। ये चीजें हो गई। अगर मैं स्कूल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की बात करती हूँ तो वहां पर टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हमने क्यूरेट किए हुए हैं। नाउ ट्रेनिंग प्रोग्राम जो हमने टीचर्स के लिए बनाया है, सो वी हैव डिजाइन एन एंटायर मॉड्यूल फॉर द टीचर्स ऑफ स्कूल्स एंड दैट हैज गॉन proper vetting through the National Commission of Child Rights Protection, NCPCR ने properly उसको vet किया है and उसको approve किया है that this is satisfactory and it can be taken to different schools and teachers can be trained on this। तो ये चीज एक है, क्योंकि obviously एक authority जब आपको एक green signal देती है तो ये समझ में आता है कि नहीं आपने सब चीजें cover की है उसके अंदर, right। दूसरी बात ये है कि बच्चों की जब हम बात करते हैं तो डिफरेंट ग्रेड्स के बच्चों के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग्स होती है। आज जो किंडरगार्टन या फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड का बच्चे से मैं जिस लैंग्वेज में बात करूंगी, मैं 6-7 के बच्चे से उस लैंग्वेज में बात नहीं करूंगी, या 9th to 12th स्टैंडर्ड के बच्चों से उस लैंग्वेज में बात नहीं करूंगी। सो ऑब्वियसली देयर आर डिफरेंट कंटेंट, देयर इज डिफरेंट वे ऑफ प्रेजेंटेशन फॉर दोस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टू बी डन। पेरेंट्स के लिए अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं वेयर दे नीड टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ चिल्ड्रन। Right. My board consists of Paushala's board consists of different people and उसमें हमने साइकोलॉजिस्ट को, सीनियर साइकोलॉजिस्ट को ऑन बोर्ड किया हुआ है टू अंडरस्टैंड कि मेंटल हेल्थ इश्यूज कितने ज्यादा प्रेवलेंट है और इसको हम किस हद तक सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरा पॉश प्रोग्राम या पॉक्सो प्रोग्राम सिर्फ कंप्लायंस तक सीमित नहीं है, बट इट ऑल्सो एक्सटेंड्स to your psychological mental well-being plus the self-defense mechanisms that you can actually teach every person। आपके जो भी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग हैं आप उनको बता सकते हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी में जो आप अपनी चीजें अपने पास रखते हैं उसका आप सेल्फ डिफेंस में इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। राइट, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ माइंड इज समथिंग दैट कम्स फर्स्ट। आपका लॉ इम्प्लीमेंटेशन फिर भी बाद में होगा, लेकिन आप उस सिचुएशन से निकलेंगे कैसे अगर फंस गए हैं तो ये बताना मेरा एक काम है। सो पौशाला में ये भी होता है, और ऑब्वियसली उसके अलावा जो भी कंप्लायंसेस होते हैं रिलेटेड टू दीज पर्टिकुलर एक्ट्स
we take care of those compliances in entirety. तो ये एक एग्जांपल मैंने दिया कि these are the types of services that we provide. All right. Wonderful, ma'am. Wonderful work. Thank you. Ma'am, coming to another question. I got to know that you are from Madhya Pradesh. You belong to Indore. So I was thinking that if we talk about states like Madhya Pradesh, which are still categorized as kind of developing states, they are still developing. So there might not be so much of focus on areas like sexual harassment or workplace harassment or mental health or something like that, like those soft areas, if you can say. I don't know, like, correct me if I'm wrong, because there is an focus on other things. You are still developing. So I'm sure there must be awareness now in those states. And you, like we had introduced, that you were also the state president for Madhya Pradesh Anti-Sexual Harassment Committee for Wiki. So now there must be certain kind of awareness there in the people, but I believe there is still a long way to go. So if we talk about the sexual abuse situation as you observed, in the capacity of being an entrepreneur yourself and also the citizen of state of Madhya Pradesh, how would you describe the experiences and the challenges that you have faced? So actually, talking about the implementation of these particular things in the state of Madhya Pradesh is very, very close to my heart and close to my soul, I would say, because I have been born and brought up in the state of Madhya Pradesh. इंदौर में रही हूँ मैं काफी सालों से, उज्जैन मेरी बर्थ प्लेस है. सो वहां पर पढ़ाई लिखाई करना, वहां पर एक ऐसा टाइम स्पेंड करना जहां पर समझ आपकी डेवलप होती है, तो वो पूरा फेज मेरा मध्य प्रदेश में इंदौर में निकला है. तो ऑब्वियसली उस दौरान मैं खुद एक ग्रोइंग स्टेज में एक लड़की थी जिसने काफी सारी चीजें एनकाउंटर की है, काफी सारे चैलेंजेस को फेस किया है. क्योंकि रोज के टाइम में जब हम इंटर्नशिप्स के लिए जा रहे हैं, हम अपने कोचिंग क्लासेस में जा रहे हैं, तो उस वक्त तो आप सोचिए ये पॉश एक्ट था भी नहीं, काफी सारी लीगल इम्प्लीमेंटेशन थे भी नहीं, बट उस दौरान से भी हम ये सारी चीजें फेस करते हुए आ रहे हैं. सो उस समय मुझे जब ये फील होता था कि नहीं, दिस इज नॉट समथिंग दैट आई वांट, क्योंकि अगर मैं कहीं जा रही हूँ, कोई मुझे गलत नजर से घूर के देख रहा है, या कोई मेरे कार को या बाइक को चेज कर रहा है, अगर मैं बस में हूँ तो कोई मुझे इनअप्रोप्रिएटली टच करने की कोशिश कर रहा है. सो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा अलार्मिंग था और मेरे लिए बहुत ज्यादा एक डिसरिस्पेक्टफुल बात थी कि नहीं, ये इस तरह की चीजें नहीं होना चाहिए. इट इज नॉट अगेन लिमिटेड टू फीमेल्स जो ट्रैवल कर रही हैं या काम कर रही है, बट टू एवरीबडी. ये चीज जो मैंने देखी उसने मुझे थोड़ा सा शॉक किया, थोड़ा सा प्रिपेयर किया, थोड़ी सी और समझदारी दी कि नहीं, ये सब चीजों के बारे में मैं कैसे कुछ कर सकती हूँ. तब मैं ऑब्वियसली बहुत छोटी रही थी जब मैंने ये सब चीजें देखी थी, लेकिन आज जब मैं उन चीजों को अपने करंट प्रोफेशन के साथ, अपने सब्जेक्ट के साथ रिलेट करके देखती हूँ, तब मुझे समझ में आता है कि नहीं, दिस हैज बिन माय कंसर्न फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. राइट. इट्स नॉट ओनली फ्रॉम 2020 दैट ये इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ, तब से मैं इस चीज को नहीं देख रही हूँ, मैं काफी पहले से अपने जहन में इस चीज को बिठा के रखी हूँ जी. लेकिन मुझे उसके बारे में काम करने का मौका शायद अब मिला है, क्योंकि अब मुझे एक प्लेटफॉर्म नजर आता है, अब मुझे एक रीच नजर आती है जहां पर मैं लोगों से इसके बारे में बात कर पाती हूँ जी. सो दिस इज वन थिंग. दूसरी मैं बात करना चाहती हूँ अबाउट द करंट स्टेटस ऑफ मध्य प्रदेश. तो तो पौधशाला ने रिसेंटली अभी अपना मध्य प्रदेश चैप्टर लॉन्च किया है इंदौर में 6th of May को. And we have a very good team set up in Indore, which consists of psychologists, which consist of the practitioners from other areas and all of that. तो मुझे एक थोड़ी सी स्टेबिलिटी मिलती है वहां पर देखने के लिए मुझे एक विजन मिलता है कि नहीं, मध्य प्रदेश में इन सब चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है. क्योंकि आए दिन मैं किससे पढ़ती रहती हूँ न्यूज़पेपर्स में. आई एम टॉकिंग अबाउट मध्य प्रदेश न्यूज़पेपर्स. वहां के जो है, मेरे फादर मुझे क्लिपिंग्स भेजते हैं कि बेटा ये पढ़ो, ये सारी चीजें यहाँ हुई हैं. और जब मैं वो किस्से पढ़ती हूँ बच्चों के बारे में, बड़ों के बारे में, मुझे घबराहट होती है, क्योंकि हम भी उस स्कूल के दौर से निकल चुके हैं. उस वक्त हमें गुड टच, बैड टच, सेफ टच, अनसेफ टच, कंफ्यूजिंग टच के बारे में जानकारी नहीं थी, पर आज के बच्चों को इसकी जानकारी होना बेहद जरूरी है जी. मेरा खुद का छोटा सा बेटा है. सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने उसको स्कूल में डालने से पहले किया था वो ये था कि क्या आपके पास पॉक्सो कमिटी है, डू यू नो अबाउट व्हाट सेक्सुअल अब्यूज इज. अगर मुझे वहां से एक
कन्विंसिंग आंसर मिलता है, मुझे पता चलता है कि नो, द स्कूल अथॉरिटीज आर वेल प्रिपेयर्ड एंड वेल अवेयर अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स, एक अंदर से मुझे सेफ्टी महसूस होती है कि नहीं, मेरे अलावा अगर मेरा बच्चा किसी और के हाथ में है तो वो सेफ है। राइट। सेम कंसर्न सभी माँ बाप की होंगी, सभी पेरेंट्स की, सभी रिश्तेदारों की, गाइडेंस की, सॉरी आपके जो भी लोग हैं उनकी, सबकी होगी। राइट। लेकिन मध्य प्रदेश में आप अगर डेटा देखते हैं तो मध्य प्रदेश कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ऊपर आता है इन टर्म्स ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, विच इज वेरी डिसहार्टनिंग। राइट। लेकिन उस जगह पर यह बात भी है कि जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है वैसे वैसे बच्चे अवेयर होते जा रहे हैं। कुछ सिचुएशंस ऐसी भी मैंने पढ़ी जहां से बच्चे अवेयरनेस की वजह से तुरंत जाके वो किस्सा अपने माता पिता को बता सके और वो उस सिचुएशन से बाहर निकल सके। पर कुछ जगहें ऐसी भी है जहां पर उन बच्चों को जबरदस्ती फंसा लिया गया। और ये काम कौन कर रहा है? ये काम आपके बहुत ही क्लोज निट सर्कल में जो लोग हैं वो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई स्ट्रेंजर आके आपके साथ कुछ गलत करके चला गया, ये बात नहीं है। इट इज ऑल अबाउट ट्रस्ट। बच्चों का ट्रस्ट जीतने के लिए आसपास के लोग काफी हैं। एंड व्हेन दे सी that the environment in the home or school is not that warm, the relationships between children, parents and their family members is not that strong, उनको वो स्पेस मिल जाता है उस जगह एंटर करने का और बच्चे के मन में अपनी एक जगह बनाने का। Right. और वहां वो ट्रस्ट बहुत बड़ा काम करता है, क्योंकि बच्चा सोचता है कि मैं अपने पेरेंट्स से या अपने गार्डियन से ये सब चीजें तो नहीं शेयर कर पा रहा हूं, तो मैं इन्हीं के साथ करूं। अब वो ट्रस्ट अगर उन्होंने गेन कर लिया और आपके साथ कल को कुछ गलत हो गया तो आप कैसे उसको डील करेंगे? राइट। तो ये सिनेरियोज दिखाई दे रहे हैं, मध्य प्रदेश में हो चाहे किसी भी और स्टेट में हो। बट सिंस मेरा बिलोंगिंगनेस मध्य प्रदेश से है तो मैं डेफिनेटली चाहूंगी कि चैरिटी बिगिंस एट होम, जिस तरह से हम बोलते हैं उसी तरह से मैं अपना काम अपने घर से शुरू करूं। मैं बॉम्बे में जरूर रह रही हूँ, आई एम सर्विंग मेनी क्लाइंट्स पैन इंडिया, लेकिन मेरे अंदर एक ये मोटिव जरूर है कि मध्य प्रदेश को मैं एक सेक्सुअल हरासमेंट, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज फ्री स्टेट बनाने में अपना कुछ कंट्रीब्यूशन दे पाऊं। Right. Right. So this is what I have observed and this is what I want to work towards. Right. Right. Wonderful, ma'am. Very, very inspiring, ma'am. And we wish you all the best in that. It's quite like disheartening to listen to all of this. Definitely, like you said, कि दिल जो है धड़कन तेज हो जाती है, घबराहट होती है सुन के. I think similar thing is happening with me. It's just very sad, the situation in our home state or all around the country with our students and everything. But hopefully Paushala will make a resounding effect and, have a bring about a wonderful change in the society for the same. So, and ma'am, I also wanted to know, like the kind of work that you're doing. So I'm sure you must be having a lot of volunteers or workers, people who are associated with you. So if someone wants to get associated with Paushala, what are the different capacities that are available to them? And do you also kind of provide some training or some kind of courses for people who are working for Paushala? And, they go in the society and conduct these trainings and awareness drives. Right. So Paushala is actually a startup. एक अभी नया फॉर्म ऑफ कंपनी है, स्टार्ट हुआ है, बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है. सो ऑब्वियसली एनरोलिंग पीपल इन पौशाला इन एनी कैपेसिटी वुड बी ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अस, बिकॉज वी वांट पीपल to work for this particular cause, and it's not only limited to the state of Madhya Pradesh but pan India. Whosoever wants to join us can join us in the capacity of an intern, an associate, a business development partner, trainer, and then we are actually also launching our online train the trainer program on POSH and POXO for the people of the industries. So actually ये प्रोग्राम ऐसा है जहां पर HR, इंटरनल कमिटी मेंबर्स, टीचर्स, प्रोफेसर्स, कॉर्पोरेट मेंबर्स, board members, ये सभी लोग, students, they can be a part of this particular online course on POSH and POXO and be the torch bearers of Paushala community. So जैसे जैसे हम उनको ट्रेनिंग इम्पार्ट करते जाएंगे वैसे वैसे मैं अपनी कम्युनिटी में उनको ऐड करती जाऊंगी. एंड उनको ऐड करने के बाद दे विल बी कनेक्टेड विद अस ऑन वन प्लेटफॉर्म एंड विद ईच अदर ऑन द सिमिलर प्लेटफॉर्म. एंड उसके थ्रू हमारे पास जैसे ही कोई ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी आती है, से फॉर एग्जाम्पल आज मैं बॉम्बे में बैठी हूँ
पर मेरी ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी आ रही है कहीं इंदौर या उज्जैन में, जहां मेरी रीच अभी नहीं है, तो वहां मैं अपने जो लोगों को मैंने ट्रेन किया हुआ है, जो मेरे कम्युनिटी के टॉर्च बेरर्स है, आई वुड गिव दैट अपॉर्चुनिटी टू दोज पीपल अंडर द अम्ब्रेला ऑफ पौधशाला टू गो एंड इम्पार्ट ट्रेनिंग। सिमिलर लाइंस में अगर वो केपेबल है टू बिकम एक्सटर्नल मेंबर्स ऑन द इंटरनल कमिटी, दैट अपॉर्चुनिटी वुड आल्सो बी गिवन टू देम, बिकॉज वी सिंपली अंडरस्टैंड दैट एवरीवेयर वी विल नॉट बी एबल टू रीच। हम हर जगह नहीं पहुंच सकते हैं, सो वी नीड टू हैव सेवरल हैंड्स, सेवरल पीपल ज्वाइनिंग अस इन दिस पर्टिकुलर मिशन एंड बी द टॉर्च बेरर्स फॉर आवर पौधशाला कम्युनिटी। सो मैं यही चाहती हूँ कि हर स्टेट में, हर सिटी में, हर डिस्ट्रिक्ट में पौधशाला के चैप्टर्स हों, वहां के लोग, लोकल लोग उस चैप्टर को चलाएं। क्योंकि उससे लोगों को जागरूकता भी मिलेगी, एम्प्लॉयबिलिटी भी मिलेगी और एक कॉज के तरफ काम करने का एक मोटिव भी मिलेगा। जी जी, राइट। सो इन सब कैपेसिटीज में हम साथ में काम कर सकते हैं। एंड व्हेन यू स्पोक अबाउट गिविंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टू आवर इंटरनल टीम मेंबर्स, ऑफ कोर्स द जैसे कि ऑनलाइन प्रोग्राम्स हम लोगों के लिए कर रहे हैं, वैसे ही सिमिलर ऑनलाइन प्रोग्राम्स या फिजिकल प्रोग्राम्स जैसी भी फिजिबिलिटी होती है, हम अपने टीम मेंबर्स के लिए करते हैं, क्योंकि टीम मेंबर्स को हम कंप्लीटली प्रिपेयर करते हैं ऑन द सब्जेक्ट्स ऑफ पॉश एंड पॉक्सो, बिकॉज अल्टीमेटली दे आर द फ्यूचर पीपल हु आर गोइंग टू टेक अप द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड बी a part of organizations in various capacities. So obviously they are completely trained on the subject, and they do undergo the course internally that we have for them. All right, understood, ma'am. Okay. So, ma'am, if I have to talk about like just off the track question, like what are you most excited about, or you are looking forward to for your for yourself personally and professionally in the coming 2 years, if you have to talk about it? See, personally, I feel I have grown as a person. क्योंकि एक मैं अपने आप को जब देखती हूँ, मैंने आपको जैसे बताया कि मैं भी स्कूल जाने के बाद, कॉलेज जाने के बाद, इंटर्नशिप्स करने के बाद आज एक अलग जगह पर आई हूँ। एक एंटरप्रेन्योरल जर्नी शुरू करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो काफी चीजें मुझे भी नहीं पता होती थी उस समय कि कैसे करूंगी, मैं क्या करूंगी, क्या इस पर्टिकुलर कॉज के लिए लोग मुझसे जुड़ेंगे, बात करना पसंद करेंगे, ये कई सारे सवाल मेरे दिमाग में चलते रहते थे। तो मैंने भी एक वो जो जर्नी अपनी तय की है, उस दौरान मैंने देखा कि मैं एज अ पर्सन ग्रो हुई हूँ, शायद थोड़ी सी और समझने लगी हूँ लोगों के पर्सपेक्टिव को, लोगों की साइकोलॉजी को, एंड सामने यही उम्मीद रखती हूँ कि लोग मुझे भी उसी पर्सपेक्टिव से समझें कि मैं किस बैकग्राउंड से आ रही हूँ, क्या कम्युनिकेट करना उनसे चाह रही हूँ। बिकॉज ये जो टॉपिक है, ये जो कॉज मैंने पिकअप किया है, वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। इट इज नॉट समथिंग विच इज वेरी प्रिविलेंट इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिस। मतलब ये नहीं है कि हर प्रोफेशनल इस फील्ड में काम कर रहे हैं, राइट? पर जो भी लोग कर रहे हैं उनके लिए मतलब एक ये अपने आप में चैलेंजिंग सब्जेक्ट है। सेम इज विथ मी। मुझे इसके बारे में बात करना, इसको इम्प्लीमेंट करना मुझे तकलीफ होती है, मुझे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि लोग अभी भी वो माइंडसेट में हैं जहां पर वो इसको बहुत जल्दी ग्रास्प नहीं करते हैं। तो एक ये चीज है, पर मैं देख रही हूँ कि मैं धीरे धीरे चीजों को खुद अच्छी तरह से ग्रास्प कर पा रही हूँ, प्लस मैं ग्रो कर रही हूँ उस पर्टिकुलर चीज में। तो पर्सनली ये चीज है। प्रोफेशनली भी मैं उम्मीद करती हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं चाहती हूँ कि मैं पैन इंडिया, बहुत बड़ी बड़ी बातें मैं नहीं करूंगी, मैं जानती हूँ कि चीजें ऐसी होनी चाहिए जो अचीवेबल है, बट सपने देखने से तो कोई नहीं आपको रोकता है। तो आई वुड एक्चुअली वांट इंडिया टू बी वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्रीज फॉर एवरीबडी, एवरी जेंडर। और मैं चाहूंगी कि पौधशाला के जरिए पौधशाला अपना कंट्रीब्यूशन इंडिया की उस ग्रोथ में, उस सेफ्टी ग्रोथ में, उस रिस्पेक्ट की ग्रोथ में कहीं ना कहीं एक मेजर कंट्रीब्यूटर बने। राइट राइट राइट। I wish you all the best, ma'am, for achieving all of that. I'm sure Pौधशाला will definitely achieve that. And ma'am, right before we leave you, like any kind of advice or any word of caution or something that you would like to share with young Indians, especially women, who are about to start their corporate journey and are kind of unaware about the legal assistance available to them at workplace in any kind of area. तो उनके लिए कुछ word of advice, कुछ guidance, if you want to give. जस्ट अ सिंपल थिंग, जो हमारे बड़े बुजुर्ग भी हमसे बोलते थे कि आप किसी भी सेटअप में काम करें, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएं, आप अपने सेंसेस को खुला रखें।
आपकी आंखें, कान, नाक खुले रहने चाहिए. यू शुड बी ऑब्जर्विंग एवरी सिंगल थिंग इन दैट पर्टिकुलर एनवायरमेंट. कहीं भी आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज हो रही है जो आपको डिस्कम्फर्ट दे रही है, विच यू आर नॉट कंफर्टेबल विथ, आप तुरंत उस चीज के लिए अपनी वॉइस रेज करें, कंसर्न को राइट अथॉरिटी को बताएं, ताकि वो टाइमली आपकी मदद कर सके. या आप अगर ये भी देख रहे हैं कि कोई आपके एनवायरमेंट में डिस्कम्फर्ट महसूस कर रहा है, तो वो इंसान अगर बोल नहीं पा रहा है तो आप उसकी आवाज बनिए. बट द थिंग्स हैव टू बी राइट एंड यू नीड टू जज वेदर दिस पर्टिकुलर एक्ट विल सीक सर्टन गाइडेंस और नो. तो आपको देखना पड़ेगा ये सारी चीजें. तो सिंपल एडवाइस यही है कि आप सब चीजें अपनी ऑब्जर्व करिए और अपने सेंसेस का प्रॉपर इस्तेमाल करिए. आपको जहां कोई चीज खटकती है, प्लीज रिपोर्ट टू दी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी इन दी ऑर्गेनाइजेशन एंड थिंग्स विल फॉलो. राइट. और आप डरिए नहीं, हेजिटेट नहीं करिए किसी भी चीज को बोलने से, क्योंकि आप बोलेंगे तो शायद आप भी बचेंगे और आपके साथ वाला भी बचेगा. बिल्कुल, बिल्कुल. I'm pretty sure, ma'am. Those were definitely words of wisdom, and I am sure all our viewers would also agree. And I think they definitely have learned something new from your journey and experiences. I did. So thank you so much, ma'am, for sitting down and sharing your inspiring journey with us. It was an absolute delight and honor to have you here. My pleasure, Antara. Thank you so much again for giving me this opportunity to speak to a number of viewers on your platform. Thank you, ma'am. And to all our viewers, if you would like to know more about Poshala and its work, you can connect via companies as well as Mrs. Dave's social media links, which have been shared in the description box below. If you have any sort of feedback for us to improve on or would just like to show some appreciation, please share your comments in the comment section below and do follow us on our other social media channels, which again have been mentioned in the description box. Don't forget to hit the like button on this video and subscribe to our channel for more such interesting conversations. Thank you for joining us, and we will see you in our next episode.